Okay. So where we are. Are you able to see the parallel ladder? Yes, sir. Okay. So this is the working of this parallel adder, and the above diagram shows the 4-bit parallel binary adder. Okay. Now, before, yeah, this IC number I've written here, that IC 7483. This IC 7483 is the IC for 4-bit parallel binary adder. Okay. So you can see the pin diagram of this chip on internet. Check it. So here 2 examples are taken, outgained as this and addend as this. Both of these are added. Sum is this and carry is this. Okay, another example is there. So here the input of each full adder will be AI, BI, and CI. Okay, AI, BI, and CI what? These are the inputs, and outputs will be SI and CI plus 1. So SI and CI plus 1 is the CI plus 1 represent the carry to the next bit, and I varies from 0 to 3. Okay, this is a general representation. So carry output of the lower order stage is connected to the carry input of the next higher stage. क्या कहा हमने कि जो पहले जो कैरी आउटपुट आ रहा है ऑफ लोअर ऑर्डर स्टेज और हायर ऑर्डर स्टेज करने का क्या मतलब है? LSB, MSB. या सो लोअर ऑर्डर स्टेज करने का क्या मतलब है कि लोअर ऑर्डर स्टेज मतलब जो जिसका सिग्निफिकेंस कम है, जैसे A0, यहाँ पर जो नंबर्स हमने लिखा A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3, तो ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है, दिस स्टेज इज एट हायर ऑर्डर स्टेज विथ रेस्पेक्ट टू दिस स्टेज. ओके, जो स्टार मार्क मैंने दिया है यहाँ पर, और इस ये जो एडर 1 है, दिस इज द लोअर ऑर्डर स्टेज ऑफ this higher order stage. Okay, so adder 1 is lower order stage with respect to the adder 2, and adder 2 is the at higher order stage with respect to adder 1. So यहाँ पर क्या है, लोअर ऑर्डर स्टेज का जो सी आउट है वो हायर ऑर्डर स्टेज वाले एडर का कैरी इन बन रहा है. वही यहाँ पर भी मेंशन है, वही यहाँ पर लिखा है. ओके, सो of the higher stage. So this type of adder is also called the ripple carry adder. Okay, so this is also known as ripple carry adder. Okay, so this is all about the carry adder. So yeah, one more thing I want to tell you, that if you want to generate more than इससे भी ज्यादा अगर हम जनरेट करना चाहते हैं, मतलब इफ वी वांट टू ऐड 8 बिट्स, अगर हम चाहते हैं कि हम 8 बिट एडर बनाएं, ये जो था क्या था, दिस वाज द 4 बिट फुल एडर. अभी हमें क्या करना है, 8 बिट फुल एडर बनाना है. देन व्हाट वी विल डू, लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड so that I can give you the overview of that. Are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Okay, so now if we want to create the 8-bit binary adder, then we have to cascade this IC. So what IC I have told, the IC 7483. If I have this IC, then I can cascade this IC. So अगर हमें 8 बिट एडर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसी आईसी का दो आईसी लेंगे और उसे कैस्केड करेंगे. लाइक, तो मान लें कि अगर हमारे पास 2 एडर्स है,
एक काम करते हैं, 2 बॉक्स यहाँ से ले लेते हैं. We can draw boxes from using this. Okay, we can take 2 boxes like this, and we can connect one to another. So what are the inputs we have? Let me take one more thing like this. Okay, so yeah, if it is a C in, so now this will give one C out. This will get some C out, and we have the inputs as what? A0. So let me take the pen so that it will be more easier to draw this. So here we will have what? We will have here as C in for this particular IC, and here we will have a C out. Instead of this, we will have four bits of A0, A1, A2, A3, and 4 bits of B0 से लेकर B3 तक. ओके, सो यहाँ पर भी जो आउटपुट आएगा पहले वाले एडर के लिए we will have 4 आउटपुट्स. तो 4 आउटपुट्स क्या क्या मिलेगा? 4 बिट एडिशन के सम में टर्म्स में S0, S1, S2 and S3. In the same way, if you will have another 4 bit मतलब जो A0, A1, A2 लिखे हैं, so we will have A4 to A7, and we will have B5, B6. This is B3. So B3. So here it is B4, B5, B6, and B7. Okay, and the outputs for these are S4, S5, S6, S7, and we will have a C out. Okay, so यहाँ हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हम C in दिए, यहाँ हमें C out मिला, और इसके अलावा we will have 8 bits of sum. So this is the IC1 7483. This is also 7483. So this is the first IC, and this is the second IC. So in this way, these two ICs can be cascaded, and we can get the 8-bit adder. So this is 8-bit ripple carry adder or parallel adder or parallel adder. Okay, so it is known as, so इस तरह से जब हम ICs को जोड़ते हैं, then this is known as cascading. Cascading of 27483 ICs. Okay, so you can see the pin diagram of this IC on internet. Okay, now what is the next thing? So what we have seen that, so next I am going to deal the converter. Converter means code converter.
code converter means like binary to gray converter. Okay, gray to binary converter. So firstly you will see these two things. तो बाइनरी टू ग्रे जब हमें कन्वर्टर बनाना है, then what we can do, we have to so we have input as binary. Sir, Yeah. हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना बताना है क्या सर? हाँ सर ये बाइनरी टू ग्रे अभी मतलब बताना था क्या? नहीं, ये बाइनरी टू ग्रे अभी मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। बाइनरी टू ग्रे कन्वर्शन नहीं, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। मतलब अगर इसका आईसी इसका हमें लॉजिक डायग्राम अगर बनाना हो, then how we can draw the logic diagram of this. So are you able to do this? Yes sir. So who is this? Adarsh. Yes sir. Yeah. Adarsh Kumar. Yeah, so I think all of you can do this very easily because we already know the converter, that the conversion of binary to gray and gray to binary. Do we? With the help of XOR gate. Yeah, with the help of XOR gate, we can convert this very easily. But I think all of you, all of your friends should also know now. तो हमारे पास, हाँ, तो हमारे पास जो अवेलेबल चीजें हैं वो क्या है? अगर हमें बाइनरी को कन्वर्ट करना है ग्रे में और ग्रे को फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें एक कन्वर्टर डिजाइन करना है। मान लें कि हमारे पास एक कन्वर्टर बनाना है, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर मान लें पहले बनाना है। तो हमारे पास इनपुट क्या है और हमें आउटपुट क्या चाहिए? इनपुट क्या है हमारे पास? मान लें अगर 4 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर बनाना चाह रहे हैं, देन वी हैव 4 इनपुट बिट्स B0, B1, B2 and B3, and we will have 4 outputs, and those outputs are what? G0, G1, G2 and G3. So here at this side we have input and on this side we have output. So this you can say that this is a binary to gray converter. So now we have to design a logic diagram for binary to gray converter. तो हमें किसी भी कॉम्बिनेशनल या सीक्वेंशियल सर्किट को बनाना होता है, तो हमें सबसे पहले चाहिए क्या होता है? किसी भी लॉजिक डायग्राम को हमें डिजाइन करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज वी शुड नो द पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. ओके, सो उन पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को जानने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है उसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल के फॉर्म में. तो किसी भी फॉर डिजाइनिंग एनी combinational or sequential circuit, what we have to do, the very first step is to get the, इस तरह का ब्लॉक डायग्राम एक तो हम पहले बना सकते हैं. ठीक है, ये देखने के लिए कि what are the inputs and what are the outputs which are required, so to get the truth table.
ओके, सबसे पहला काम होता है ट्रूथ टेबल पाना, कि ट्रूथ टेबल हम कैसे निकालें, मतलब क्या किस पॉसिबल कॉम्बिनेशन, किस पॉसिबल और इंटेंडेड इनपुट के लिए क्या आउटपुट चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है टू गेट द ट्रूथ टेबल? सेकंड स्टेप इज to get the expression or to get the simplified expression, है ना। हमें किसी भी सर्किट को डिजाइन करना है तो हमें क्या चाहिए, उस सर्किट का क्या चाहिए, हमें बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए। हाँ, किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमें सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन होगा तभी हम उसको मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, और थर्ड स्टेप क्या है, जब हमें एक्सप्रेशन मिल गया तो देन एक्सप्रेशन मिलने के बाद हम उसे सिंप्लीफाई करें, ये भी दूसरा स्टेप डाल सकते हैं, इसे यहाँ नहीं लिखकर we can give it that simplify the Boolean expression and then implement using gate. Okay, implement using gates. ओके, तो ये एक बेसिक स्टेप्स है जो कि ध्यान रखना है किसी भी सर्किट को डिजाइन करना हो, ठीक है ना। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर दिस? सो अभी हमारे पास इनपुट क्या है, वी विल हैव इनपुट एज B0, let it be the binary input, and at output what we will have, gray output, ठीक है। तो बाइनरी इनपुट के लिए हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, हमने क्या किया है, 4 बिट बाइनरी लिया है, तो 4 बिट बाइनरी के लिए जो पहला कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, 0 0 0 0। अगर इसे मान लें दिस इज B0, this is B1, this is B2 and this is B3. So for all these steps what we need to do, ग्रे, इसी का भी ग्रे निकालना है, मतलब we should know G3, G2, G1, G0। ओके, सो यहाँ पर इसका बाइनरी अगर 0 है तो ग्रे भी क्या होता है, you already know this is all zeros। okay, for the second case when this is 0 0 0 1, okay, जब ये 0 0 0 1 होगा then we will have what is the output। इसका हमें क्या करना है, इसका ग्रे निकालना है, तो 0 0 0 1 का ग्रे निकालेंगे तो क्या आएगा, कैन एनीबॉडी टेल मी? 0 0 सेम ही रहेगा, या 0 0 ये 0 0 0 सेम रहेगा सर। या ये बाइनरी है, इसका ग्रे निकालना होगा तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, जीरो को ये XOR करते हैं नेक्स्ट 0 के साथ। तो पहला 0 तो एज इट इज लिखते हैं, पहला वाला एज इट इज लिखते हैं, दूसरा वाले को XOR करके लिखते हैं, तो 0 0 0 आएगा, 0 0 0 आएगा। नेक्स्ट इज 0 1 और को XOR करेंगे, देन वी विल हैव 1। तो इसका ग्रे भी क्या आएगा, 0 0 0 1। ओके, नेक्स्ट विल बी next will be 0 0 1 0। तो हम क्या करते हैं, पहले बाइनरी को लिख लें, उसके बाद ग्रे में कन्वर्ट करें, या फिर ग्रे को लिख लें और बाइनरी में बाद में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो व्हाट इज द ग्रे ऑफ दिस 1 0 0 0 1 0 है, दिस इज बाइनरी। व्हाट इज द ग्रे, इट इज 0 0 0 0 0 1 1 1 1 and 1 0 1। So it will be 0 0 1 1। okay, next 0 0 1 1। what is the binary, what is the gray of this number?
तो 0010। किन्हीं को ये बताने की जरूरत है कि कैसे आ रहा है, ये सभी को पता है? नो सर, बताने को बैठे हैं। क्या ये सभी को पता है कि ये कन्वर्शन कैसे आ रहा है? यस सर। और अगर नहीं पता है बाइनरी टू ग्रे कन्वर्शन, तो आप ये प्रीवियस पहले के क्लास में जाकर देख सकते हैं, वहां पर ये कन्वर्शन बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं अब इसे लिख रहा हूँ बिना बोले हुए। ओके, सो 0 0, what we will have now, so it is 3, so we will have 4. So the binary, what will be the gray of this? It will be 0 0110। 1 1 1 0. Next is 0 1 0 1. Now what will the gray? Gray will be 0 1 1 1 1 1. 1। Is it? Next is 0 1 1 0. So what will the output here? 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1. Is it right? यस सर। So now we will have 0 1 1 1. So the output will be 0 1 1 1 0 1 1 0. Next 1 0 0 0. So we will have this 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0. Okay, next step we will have 1 0 0 1. So what will be the output? 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1. So I am writing one more step. 1 0 1 0. For this it should be 1 1 0 1 1 1 0 1. Okay, so what is the decimal of this? What is the decimal of this? Is it 10? Yes sir. Okay. 1010. Okay, so now what I am going to do, okay, so actually हमने यहाँ पे सिर्फ अभी 10 तक किया है. So if I have total 4 bits, then we should have how many number of combinations? 16. 16. So already we have 11 combinations. Because this is 10, so 0 0 is also included. So we have 11 combinations. So we will have more 5 combinations. 5 more combinations are there. So I think all of you can write that. So based on now what we have to do, we will have to draw the, so अभी ये सारा का सारा जब complete हो जाएगा, after completion of this truth table, we will draw the K map. Okay, we will draw a K map. So what is the size of the K map? How many inputs are there? There are 4 inputs. If there are 4 inputs, then how many boxes in a K map? 16. 16 boxes should be there. So we will make a 16 box truth K map. Okay, we have got this. So this is B1, B0, and this is B3 and B2. Okay. So where is the LSB or MSB? B0 to B3, where is the LSB?
LSB is B0 or LSB is B3? B0. B0 is the LSB. So the numbering will start from where? So numbering will start from here. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. So this is 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, sorry, 1, 0, 1, 1. Okay. So we will have these combinations. Now, based on we are making the K map for G3. Okay. What we are doing? We are making the K map for G3 because we have total of 4 outputs: G3, G2, G1, and G0, and we have 4 inputs. So based on these 4 inputs, we have got these 4 outputs. So we are making this the K map for the first output. So this is the first output, G3. Okay, first output means this MSB G3. So G3 के लिए हम K map बना रहे हैं. तो G3 के लिए K map बना रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ 1 आ रहे हैं. ठीक है, कौन कौन से बॉक्स में हमें 1 दिख रहा है. तो यहाँ पर हमें क्या मिला है 7 के बाद. ओके, 7 के बाद यहाँ पर जब आप ट्रूथ टेबल को आगे बढ़ाओगे तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्या शो किया है, 10 तक शो किया है. 11 क्या आएगा, 11 आएगा, मतलब 1 1 1 0 1 1, then 1 1 0 0, then 1 1 0 1, then 1 1 1 0, then 1 1 1 1. So it is what? It is 1 0 1 1 means, is it 11? This is 12. This is 13. This is 14. This is 15. So हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने B0 to B3 सिर्फ 10 तक दिखाया, अभी 11 है. सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक आउटपुट मिलेगा जो कि क्या मिलेगा, 1, मतलब जो ग्रे मिलेगा. दिस इज 1, सॉरी 1 1 1 0 1, और ये क्या मिलेगा लास्ट में 1 1 0. सो इस साइड में जो लिख रहा हूँ, या इस साइड जो लिख पेन भी आपका मोबाइल पर. So Premlata, mute yourself. Premlata. Yeah. So 1100. So इस साइड में जो लिख रहा हूँ वो बाइनरी है. ओके, इस साइड जो लिख रहा हूँ बाइनरी है, इस साइड जो लिख रहा हूँ वो ग्रे है. अभी इसके बाद का जब, तो हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद सारा 1 1 है ना बाइनरी में, तो हमें पहला बीट हमेशा क्या मिलेगा, ये 1 1 ही मिलेगा. ओके, ये 1 1 ही मिलेगा. तो यानी कि फॉर ईच एंड एवरी बॉक्स. तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 7 के बाद ये है 7. ओके, तो 7 के बाद 8 9 10 11 इन सारे में क्या मिल रहा है, MSB, ये सारा 1 1. जी देखिए, यहाँ ये 1 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है. तो इसके बाद जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे अप टू 15 तक तो सारा 1 मिलेगा. मतलब 8 से, 8 कहाँ है, वेयर इज 8. सो 8 यहाँ है, 1 9 10 11 12 13 14 15. यहाँ पर 1 क्यों मैंने पुट किया, इज इट क्लियर टू यू ऑल. यहाँ पर इन सारे बॉक्सेस में मैंने 1 क्यों पुट किया है, क्या ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. इन सारे बॉक्सेस में मैंने 1 क्यों पुट किया है? क्योंकि अभी हम ये जो के मैप बना रहे हैं वो G3 के लिए बना रहे हैं, और G3 में 1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर देखोगे 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिल रहा है, ये क्या है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 8, द बॉक्स 8, बॉक्स नंबर 8. ओके, तो 8 वाले के लिए यहाँ पर 1 आ रहा है, 9 वाले के लिए 1 आ रहा है, 10
इस 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ 1 आ रहा है। इसी तरह से 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पहला बिट है वो 1 है, 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी पहला बिट 1 है, 13 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी पहला बिट 1 है। ओके, इन द सेम वे 8 से लेकर 15 तक सारे बॉक्सेस में ये 1 1 1 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो G3 के लिए के मैप होगा। हम लोग जानते हैं कि कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन कितने कितने का बनाते हैं। सभी लोग ये जानते हो कि कॉम्बिनेशन जो हम लोग बनाते हैं वो आइदर 1 हो सकता है, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। ओके, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ क्या बन रहा है, हियर इट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ओनली वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और अगर ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। वर्टिकली देखें तो इन सारे बॉक्सेस में क्या कॉमन है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है। अगर चारों कॉलम्स में वर्टिकली देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ से जब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो व्हाट विल बी कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, B3। ये वाला 1 जो है वो दोनों में है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, मतलब ये क्या मिल रहा है, B3। सो ये जो आउटपुट मिला, दिस इज रिप्रेजेंटिंग B3, दैट इज G3 इज इक्वल टू B3। ओके, तो ये जो के मैप मिला हमें क्या मिला, G3 इज इक्वल टू B3 मिला। ठीक है, इन द सेम वे now we will have to draw the K map for this G2. Okay, so we have to make the K map for this G2. तो G2 के लिए जब K map बनाएंगे तो उसमें देखेंगे 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो G2 के लिए जो मैप बनाएंगे उसमें हमें दिखेगा कि यहाँ 1 से लेकर, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को। तो 4 से लेकर के कहाँ तक मिलेगा, 13 तक। तो यहाँ पर 10 है, उसके बाद 11 में देखोगे 11 यहाँ पर है 110। इसके बाद जब हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद जब हम यहाँ पर इसे ग्रे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 110 101 और इसके बाद क्या है, 000। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये 1 कहाँ तक मिला है, ये क्या है, दिस इज 11, सॉरी 11 तक आएगा, नॉट 13। तो अभी यहाँ पर फिर से इसके बाद वाले को कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल हैव 110 101 011। तो अभी यहाँ इसके बाद आ रहा है 1 0 आ रहा है। तो 1 कहाँ मिला हमें, G2 पर 1 देखो यहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक गया है, ये यहाँ से अप टू दिस मच, यहाँ तक आया है। ओके, यहाँ ऊपर देखो, ऊपर मैं पेन से लिख रहा हूँ। सो इस 1 तक, मतलब 11 तक आया। इसका मतलब क्या है कि 4 से लेकर 11 तक सारे बॉक्सेस में क्या होगा, 1 होगा। तो ये सभी को क्लियर है या नहीं, ये मुझे एक बार बताओगे। मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, यानी कि कहाँ कहाँ होगा। तो एक काम करते हैं, एक दूसरा के मैप बना लेते हैं। सॉरी, so here what we have, here we have B1 B0, here we have B3 and B2. So what we will get now, the numbers as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So for अभी जो हम के मैप बना रहे हैं, ये के मैप किसके लिए है, के मैप फॉर G2। तो अगर G2 के लिए क्या के मैप बना रहे हैं तो G2 वाले रो को देखेंगे, उस वाले कॉलम को देखेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ 1 है। तो ये 1 कहाँ है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 1 आ रहा है, यहाँ पर ये देखो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है। और यहाँ देख रहे हो उसके बाद सारा 1 है ना, ये सारा का सारा 1 है, यहाँ से ये सारा 1 आ रहा है। तो अब हम देखें कि
यहाँ पर 1 कहाँ तक गया, अप टू 11 तक गया है, तो हम 11 तक 1 पुट करें, देखें 4 to 11, तो 4 से लेकर, तो 4 5 6 6 7 8 9 10 11 है ना। तो ये कॉम्बिनेशन मिला। यहाँ पर ये क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सो यहाँ पर देखें तो वर्टिकली तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, हॉरिजॉन्टली हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। तो हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से अगर देखें तो इस पूरे बॉक्स में क्या कॉमन है, सर 4 का क्वाड बनेगा ना, पेयर बनेगा। ये क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ से, इस चारों बॉक्स में क्या कॉमन है, यही कॉमन है, ये 0 1 0 1 मतलब B3 बार प्लस B2। B3 बार B2, नॉट प्लस, प्लस नहीं होगा क्योंकि हम स्टॉक में लिख रहे हैं, ठीक है। यस सर। और यहाँ कॉमन, चूंकि ये कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर एक क्वाड का, तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज B3 बार B2 बार, B2 है ना। B2 तो इस तरह से हमें Yes. क्या, इस तरह से हमें क्या मिल गया, G2 इज इक्वल टू, यहाँ देख रहे हो B3 बार B2 प्लस B3 B2 बार, मतलब क्या हो गया, B3 बार B2 प्लस B3 B2 बार, मतलब B3 XOR B2। ओके, फिर से ज्वाइन करोगे सभी लोग, क्लास ओवर होगा अभी। ओके, फिर से ज्वाइन करोगे। सो वी विल हैव G2 इज इक्वल टू G3 प्लस G2। ओके, तो G3 इज इक्वल टू हमें मिला B3 XOR B2। इन द सेम वे हम लोग जब G2 के लिए अभी लिख लिए हैं, G1 के लिए और G0 के लिए हम आगे लिखेंगे। ओके, सो प्लीज